There are 2 participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. All participants are muted and they can unmute themselves. Om Namoryantanam Namo Siddhanam Namo Airyanam Namo Vajjayanam Namo Lohe Savvasahunam Mangalam Bhagavan Viro Mangalam Gautamo Gani Mangalam Kunda Kundaryo Jaina Dharmostu Mangalam ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीना कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो. રાજુભાઈ મેં પાછું ગઈકાલનું સાંભળ્યું પણ જરાક 1-2 મિનિટ માટે નિમિત્ત નૈમિત્તિક પાછું લઈ શકાશે પ્લીઝ? હા હા ચોક્કસ. ઓકે, ગુજરાતીમાં ભાઈ પ્લીઝ. થેન્ક યુ. હાજી. આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ માંગલિક કરીને સમયસારને કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે. સમયસાર શબ્દનો અર્થ જીવ દ્રવ્યમાં સારભૂત. જીવ પાસે દ્રવ્ય સ્વભાવ છે. જીવનું સ્વરૂપ અનંત ગુણાત્મક છે. જીવ અનાદિથી અનંતકાળ પરિણમે છે. એમાં સારભૂત શું છે? તો કે એમાં સારભૂત જીવનો દ્રવ્ય સ્વભાવ જે એક છે, શુદ્ધ છે, પરિપૂર્ણ છે, અરૂપી છે, દ્રષ્ટિનો વિષય છે, શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે, દ્રવ્યાર્થિક નહીંનો વિષય છે, એવો જીવનો સ્વભાવ એ સારભૂત છે. એ સ્વભાવને સારભૂત કેમ કહ્યો? તો કે એનું ધ્યાન કરવાથી, એના પર દ્રષ્ટિ મૂકવાથી, એના પર ઉપયોગ મૂકવાથી જીવને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટે છે. એટલે કે મોક્ષ માર્ગ પ્રગટે છે અને એનું ફળ મોક્ષની પ્રાપ્તિ પણ જીવના દ્રવ્ય સ્વભાવના આશ્રયે જ મોક્ષની પ્રગટતા થાય છે. આવા સમયસાર શાસ્ત્રમાં કર્તા કર્મ અધિકાર ચાલે છે. કર્તા કર્મ અધિકારમાં ગાથા 100 પૂર્ણ થઈ છે. ગાથા 100માં એક શબ્દ છે નિમિત્ત નૈમિત્તિક. નિમિત્ત કોને કહેવું, નૈમિત્તિક કોને કહેવું?
તો કે અગ્નિ નિમિત્ત છે અને લાકડું બળે એ નૈમિતિક દશા છે. પાણી ઉષ્ણ થયું તો અગ્નિ નિમિત્ત છે. પાણી ઉષ્ણ રૂપે થવું એ નૈમિતિક દશા છે. કર્મનો ઉદય નિમિત્ત છે. જીવ એમાં જોડાય તો મોહ રાગ દ્વેષ થવા એ નૈમિતિક દશા છે. જીવ મોહ રાગ દ્વેષ કરે એ નિમિત્ત છે અને નવા કર્મ બંધાય એ નૈમિતિક દશા છે. તો નિમિત્તના સંગમાં જોવા મળતી અન્ય દ્રવ્યની પરિણતિ કર્મનો ઉદય એની ઉપસ્થિતિમાં જીવની દશામાં થતા મોહ રાગ દ્વેષ તો કર્મનો ઉદય નિમિત્ત અને જીવની દશામાં ઉત્પન્ન થતા મોહ રાગ દ્વેષ એ નૈમિતિક. આવો નિમિત્ત નૈમિતિક શબ્દનો અર્થ છે. હવે ગાથા 101 એનું હેડિંગ છે હવે. થેન્ક યુ રાજુભાઈ. गाथा 101 उसका हेडिंग है अब. अब का अर्थ है कि 100 गाथा में आचार्य भगवान ने ये बात सिद्ध की है कि आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से तो परद्रव्य के परिणाम का करता नहीं है, लेकिन निमित्त नैमितिक संबंध से भी आत्मा परद्रव्य के परिणाम का करता नहीं है. ये दो बात समझाई. उसके बाद क्या कहते हैं तो कि ज्ञानी ज्ञान का ही करता है. तो ज्ञानी ज्ञान का करता है, परद्रव्य के परिणाम का करता नहीं है. ये बात आचार्य भगवान 101 गाथा में कहना चाहते हैं. फरीवार गुजरातीમાં गाथा 101 હવે. હવે શબ્દ પૂર્વ ગાથાને એટલે 100 ગાથાને 101 ગાથા સાથે જોડે છે. કઈ રીતે? તો કે 100 ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે એવું સિદ્ધ કર્યું કે આત્મા વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવે પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા નથી. એક વાત એ સિદ્ધ કરી. બીજી વાત એ સિદ્ધ કરી
કે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધથી પણ આત્મા પરદ્રવ્યના પરિણામનો કર્તા થતો નથી. તો વ્યાપી વ્યાપક ભાવ અને નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધથી આત્મા પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા નથી. એટલી વાત અમે સિદ્ધ કર્યા પછી 101 ગાથામાં આચાર્ય ભગવંત એમ સિદ્ધ કરે છે કે જ્ઞાની જ્ઞાનનો જ કરતા છે. જ્ઞાની જ્ઞાનનો કરતા છે એટલે શું? તો કે જ્ઞાની વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવે પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા નથી, પણ માત્ર પરદ્રવ્યના પરિણામનો જાણનારો છે. જ્ઞાની નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધથી પણ પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા નથી, માત્ર પરદ્રવ્યના પરિણામનો જાણનારો છે. એટલે કે જ્ઞાની પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા છે કે જ્ઞાની પરદ્રવ્યના પરિણામનો અકર્તા છે? તો કે જ્ઞાની પરદ્રવ્યના પરિણામનો અકર્તા છે. અકર્તા શબ્દનો બીજો અર્થ છે માત્ર જાણનાર છે. फिर से हिंदी में 101 गाथा में क्या दर्शाना है? तो कि आचार्य भगवान अगली गाथा में अस्थि से बताया कि आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से परद्रव्य के परिणाम का करता नहीं है. उसके बाद 101 गाथा में आचार्य भगवंत ये बताना चाहते हैं कि ज्ञानी व्याप्य व्यापक भाव से परद्रव्य के परिणाम का करता नहीं है, लेकिन ज्ञानी એટલે કે આત્મા જ્ઞાન स्वभावी होने के कारण मात्र परद्रव्य के परिणाम को जानने वाला है, उसके परिणाम का करता नहीं है. उसके परिणाम को सिर्फ जानता है. दूसरी बात ये बतानी है कि ज्ञानी निमित्त नैमित्तिक संबंध से परद्रव्य के परिणाम का करता नहीं है, लेकिन ज्ञानी परद्रव्य के परिणाम को सिर्फ जानता है. अब देखो गाथार्थ. जो ज्ञानावरण आदि उद्गल द्रव्य के परिणाम है, उसको
जिस आत्मा करता नहीं लेकिन जानता है वो ज्ञानी है। क्या कहा? ज्ञानावरण आदि। ज्ञानावरण आदि उसका अर्थ है 8 प्रकार के द्रव्य कर्म। 8 प्रकार के द्रव्य कर्म। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम અને ગોત્ર। 8 प्रकार के कर्म घाती 4, अघाती 4, ये 8 प्रकार के कर्म पुद्गल है, पुद्गल के परिणाम है। जो 8 प्रकार के परिणाम पुद्गल के परिणाम है, उसमें निमित्त कौन है? तो कि 8 प्रकार के कर्म बनने में जीव के राग आदि निमित्त है। जीव की दशा में योग गुण का कंपन हुआ और उसी समय राग आदि की उत्पत्ति हुई। उसका निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा स्वयं की परिणमन शक्ति के द्वारा कार्मण वर्गणा में से कर्म बने और वो कर्म आत्मा के प्रदेश पर चिटक गए। ऐसे 8 प्रकार के जो कर्म हैं वो है तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम। उसका कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा उसका कर्ता क्यों नहीं है? तो कि आत्मा को द्रव्य कर्म के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। व्याप्य व्यापक संबंध जहाँ है वहीं कर्ता कर्म संबंध है। आत्मा स्वद्रव्य, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म पुद्गल के परिणाम। तो आत्मा और पुद्गल के परिणाम के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। इसलिए ज्ञानी द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है, एक कारण। दूसरा, कि ज्ञानी को
अस्थिरता का राग होता है, तो अस्थिरता के राग के कारण कर्म का बंध होता है। तो क्या ज्ञानी निमित्त नैमित्तिक संबंध से द्रव्य कर्म का करता है? ऐसा प्रश्न शिष्य को हो सकता है। तो कि आत्मा, ज्ञानी का आत्मा अस्थिरता के राग उत्पन्न हुआ तो अस्थिरता के राग के साथ आत्मा को व्याप्य व्यापक संबंध है, लेकिन द्रव्य कर्म के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। इसलिए भी ज्ञानी का आत्मा द्रव्य कर्म का करता नहीं है। तीसरी बात, ज्ञानी को अस्थिरता का राग उत्पन्न हुआ, लेकिन अस्थिरता का राग करने जैसा नहीं है, ऐसा ज्ञानी का अभिप्राय है। पुरुषार्थ तीव्र नहीं चला, इसलिए अस्थिरता का राग उत्पन्न हुआ। तो राग करने जैसा नहीं है ऐसा अभिप्राय होने के कारण ज्ञानी रागादि जिसका निमित्त है ऐसे द्रव्य कर्म का भी करता नहीं है। तो कि ज्ञानी किसको कहे? तो कि जिसका ज्ञान उपयोग उत्पन्न होने के साथ मैं ज्ञायक हूं ऐसा ज्ञान उपयोग स्वीकार करता है और कर्म का उदय मुझसे भिन्न है, तो ज्ञायक स्वभाव और कर्म का उदय। राजू भाई, हाँ जी, यह ज्ञान उपयोग हमेशा शुद्ध ही उत्पन्न होता है? ज्ञानी का परिणाम प्रश्न ये आया कि शुद्ध उत्पन्न होता है। नहीं, ज्ञानी का परिणाम नहीं। जैसे कि हमारा ज्ञान उपयोग उत्पन्न होने के साथ ही पर को विषय बनाता है, तो क्या ज्ञान उपयोग हमेशा शुद्ध ही उत्पन्न होता है, अशुद्ध नहीं उत्पन्न होता? क्योंकि आत्मा तो अनादि से अशुद्ध है। आत्मा अनादि से अशुद्ध है, वो पर्यायी दृष्टि से है कि स्वभाव दृष्टि से? पर्याय दृष्टि से। तो पर्याय में राग उत्पन्न होता है, और पर्याय में जो राग उत्पन्न हुआ
वो पर्याय की योग्यता के कारण हुआ कि द्रव्य स्वभाव के कारण उत्पन्न हुआ? हुआ तो पर्याय की योग्यता के कारण, हाँ। बट आपने अभी बोला जैसे ज्ञान उपयोग उत्पन्न होने के साथ ही उसने पर को विषय बनाया, तो ज्ञान उपयोग तो भूतात्मा का स्वभाव है, तो फिर स्वभाव शुद्ध अनादि से कैसे है अगर अशुद्ध है तो? ये प्रोसेस एक साथ युगपद होती है कि अग्नि को स्पर्श करता हुआ पानी निकला, तो आपको पानी कैसा लगा? उष्ण। जो उपयोग की उत्पत्ति हुई उसका काल और कर्म के उदय का काल और उसमें जुड़ने का काल एक ही है, डिफरेंस नहीं है, आगे पीछे नहीं है। तो हमारा एक समय का ज्ञान उपयोग उत्पन्न होता हुआ ही स्व पर का भेद ज्ञान भी कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी कर्म के उदय में जुड़कर उत्पन्न हो सकता है। तो ज्ञान उपयोग दो प्रकार का प्ले कर सकता है। उत्पन्न होने के साथ जो उत्पन्न हुआ उसके साथ उसको किसकी महिमा है? उदय की महिमा है तो उदय में जुड़ जाएगा। ज्ञायक स्वभाव की महिमा के साथ उत्पन्न हुआ तो ज्ञायक में जुड़ जाएगा। उत्पन्न होने के साथ उसका जोर किस तरफ है, ऐसा दिखाना है। तो क्या अनादि काल से कर्म के उदयों का या पर का उल्लास है, पर की महिमा है, तो उपयोग उसका ऐसा सहज हो गया, अनादि से ऐसा ही प्रवृत्ति की है, तो इतना सहज हो गया कि उत्पन्न होने के साथ कर्म के साथ जुड़ जाता है। तो ज्ञान स्वभाव है वो परिपूर्ण शुद्ध है, चाहे पर्याय अज्ञान रूप परिणाम करे या ज्ञान रूप। ज्ञायक तो शुद्ध ही शुद्ध रहेगा। परिणाम अशुद्ध उत्पन्न होवे कि शुद्ध उत्पन्न होवे, ज्ञायक स्वभाव तो त्रिकाल शुद्ध है। लेकिन पर्याय दो प्रकार से परिणमन कर सकती है। अशुद्धता रूप और अशुद्धता रूप परिणमन करना वो उसकी योग्यता है, और शुद्ध रूप परिणमन करना उसका स्वभाव है। योग्यता क्षणिक है, ज्ञायक स्वभाव त्रिकाल है। ज्ञायक स्वभाव जो त्रिकाल है वो तीनों काल सदा एक है, अरूपी है, शुद्ध है, परिपूर्ण है। पर्याय एक समय की क्षणिक है, पलटने वाली है, उत्पाद व्यय वाली है, उसका काल एक समय है,
और उसमें ऐसी योग्यता है कि पर के संग में अशुद्धता रूप परिणमन कर सके। तो पर्याय की योग्यता, राजू भाई, हाँ, जैसे आपने कल भी बताया था कि एक कार्य होने में 3 कारण होते हैं। तत्समय की योग्यता, त्रिकालीय उपादान, तत्समय की योग्यता, त्रिकालीय उपादान और अनंतर पूर्व षड्वर्ती पर्याय का व्यय। बट अगर अनंतर पूर्व षड्वर्ती पर्याय का व्यय वो कार्य होने में अगर एक कारण वो है, तो मिथ्यात्व का व्यय और संकित का उत्पाद, तो क्या ऐसा है? हम्म, फिर तो तो अगले के क्षण ऐसा हो जाएगा हाँ, कि सम्यक्त्व का व्यय और मिथ्यात्व का उत्पाद। प्रश्न क्या है कि कल आपने समझाया था कि कोई भी एक पर्याय उत्पन्न होती है, उसमें 3 कारण हैं। एक त्रिकाल उपादान जो द्रव्य स्वभाव है, उसको कारण इसलिए कहा कि द्रव्य स्वभाव बिना पर्याय जो क्षणिक है वो आएगी कहाँ से? तो कि उसके पीछे नित्य स्वभाव त्रिकाल है, वो द्रव्य स्वभाव में से पर्याय आती है, इसलिए द्रव्य स्वभाव त्रिकाल उपादान को कारण कहा। दूसरी बात कि द्रव्य स्वभाव को पर्याय का कारण इसलिए कहा कि द्रव्य स्वभाव पर्याय के पूरे भाग में व्यापा हुआ है। द्रव्य स्वभाव को कारण इसलिए कहा कि पर्याय द्रव्य से होती हुई रचना है। पर्याय द्रव्य स्वभाव में जो शक्ति रूप सामर्थ्य है, उसकी व्यक्तता है, इसलिए द्रव्य स्वभाव को कारण कहा। तो एक कारण हो गया। अब दूसरा कारण, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को कारण क्यों कहा? तो कि कारण इसलिए कहा कि पर्याय में द्रव्य व्याप जाता है, एक पर्याय में द्रव्य व्याप जाता है। अगर आपको दूसरी पर्याय चाहिए तो दूसरा द्रव्य तो है ही नहीं। नहीं तो फिर जैसे हमने अंगूठी बनाई, तो जो सोना है उस समय क्या पूरा सोना अंगूठी में व्याप गया? ऐसा ही है ना कि आपके पास 5 ग्राम सोना था, 5 ग्राम सोना अंगूठी में व्याप गया। अब 5 ग्राम नहीं की तो हमने 5 ग्राम नहीं लगाए तो द्रव्य आधा हो गया ना। ये अच्छा तो दृष्टांत है ना 5 ग्राम का। 5 अच्छा ग्राम या बराबर। वो तो दृष्टांत है, लेकिन वही 5 ग्राम में से मुझे एयरिंग चाहिए, तो वो 5 ग्राम जो रिंग बनी थी उसकी रचना बिखर जाए, तब वो 5 ग्राम सोना एयरिंग में व्याप सकता है। और वो एयरिंग में व्यापा हुआ 5 ग्राम सोना, वो पर्याय बिखर जाए, तब वही 5 ग्राम चेन में व्याप सकता है। तो पूर्व पर्याय का त्याग न हो तो उत्तर पर्याय प्रगटती नहीं है, वो दिखाने के लिए
अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय को कारण बताया कि वो कारण इसलिए है कि उसका त्याग होना जरूरी है। व्यय नहीं होगा, पूर्व पर्याय का व्यय नहीं होगा तो उत्तर पर्याय प्रगटेगी कैसे? तो वहां कारण किस लिए बताया? पूर्व पर्याय का त्याग कारण, उत्तर पर्याय का प्रकट होना कार्य। पहले बताया ये कि पर्याय द्रव्य में से आती है, इसलिए त्रिकाल उपादान, त्रिकाल द्रव्य वो कारण, और उसमें से पर्याय आई वो कार्य। वहां कारण कार्य ऐसा बताया। अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय में कारण कार्य कैसे बताया कि पूर्व पर्याय का त्याग कारण तो उत्तर पर्याय का प्रकट होना कार्य। पूर्व पर्याय में जो द्रव्य व्यापा था वो द्रव्य पूर्व पर्याय में से छूटेगा नहीं तो उत्तर पर्याय की रचना कर नहीं सकता है, ऐसा कारण कार्यपण बताया। और तीसरा बताया कि तत्समय की योग्यता, पर्याय का कारण पर्याय। तो कि ऐसा क्यों? तो कि पर्याय द्रव्य स्वभाव शुद्ध, परिपूर्ण शुद्ध है, फिर भी पर्याय अशुद्ध प्रगटती है। इतनी स्वतंत्रता है क्योंकि पर्याय में ऐसी योग्यता है। तो वहां द्रव्य स्वभाव को कारण नहीं कहेंगे, पूर्व पर्याय को भी कारण नहीं कहेंगे, वर्तमान पर्याय का कारण कहेंगे। क्यों ऐसा कहा? तो कि पूर्व पर्याय मिथ्यात्व की हो और उत्तर पर्याय सम्यक्त्व की हो तो मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का कारण नहीं बताएंगे, और वर्तमान पर्याय सम्यक्त्व की हो और आगे वाली पर्याय जीव सम्यक्त्व में से गिर गया, उपसम सम्यक दर्शन एक गिर गया और मिथ्यात्व प्राप्त हुआ, तो कई सम्यक्त्व को मिथ्यात्व का कारण नहीं बताएंगे। तो वहां क्या बताया कि पर्याय पर्याय का कारण है, प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, उसको अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय की भी अपेक्षा नहीं है और त्रिकाल उपादान की भी अपेक्षा नहीं है। ऐसा क्यों कहा? कि स्वभाव शुद्ध है फिर भी पर्याय अशुद्ध उत्पन्न होती है, पूर्व पर्याय मिथ्यात्व की है फिर भी उत्तर पर्याय सम्यक्त्व की प्रकट होती है। पूर्व पर्याय में राग था लेकिन उत्तर पर्याय में द्वेष उत्पन्न हुआ, पूर्व पर्याय पाप की थी लेकिन उत्तर पर्याय पुण्य की उत्पन्न हुई, पूर्व पर्याय पुण्य की थी लेकिन उत्तर पर्याय शुद्ध प्रकट हुई। तो पूर्व पर्याय अशुद्ध थी, वर्तमान पर्याय शुद्ध प्रकट हुई। तो वहां बताना है कि प्रत्येक पर्याय जो उत्पन्न हुई वर्तमान में वो पर्याय का कारण पर्याय, उसको तत्समय की योग्यता कहा। तीनों दिखाने का आते हुए भी गड़बड़ हो रहा है। कभी आप बोलते हो हाँ, पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का कारण, फिर आपने बताया वर्तमान पर्याय का कारण वर्तमान की पर्याय, फिर आपने बताया द्रव्य में से पर्याय आती है। तो इसमें हम समझे समझना क्या? क्या मुझे? तो कि समझना ये है कि जहाँ जो बात जो अपेक्षा से है वही समझने का है।
जहाँ ये सिद्ध करना है कि सभी द्रव्य की पर्याय अपने द्रव्य में से आती है, तब क्या कहा जाएगा कि वर्तमान पर्याय कहाँ से आई? पर में से आई कि स्व में से आई? स्व में से। तो वहाँ ये सिद्ध करना है कि दरेक द्रव्य की पर्याय स्व में से ही आती है। दूसरा ये सिद्ध करना है कि प्रत्येक द्रव्य स्वभाव में इतना शक्ति रूप सामर्थ्य है कि अनादि से अनंत काल प्रति समय स्वभाव में से एक एक पर्याय को प्रकट कर सके, इतना द्रव्य स्वभाव शक्तिशाली है। तब ऐसा कहने में आएगा कि पर्याय का कारण द्रव्य स्वभाव है। वहाँ इसी तरह सिद्ध करना है। और वहाँ जो पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का कारण है, वहाँ ये बताना है कि व्यय होने बिना उत्पाद हो नहीं सकता, ये सिद्ध करना है। तो कि व्यय होने बिना उत्पाद क्यों सिद्ध नहीं हो सकता? तो कि व्यय में जो पूर्व पर्याय थी उसमें द्रव्य व्यापा था। अगर वो पर्याय नाश नहीं होगी तो उत्तर पर्याय में द्रव्य व्यापेगा कैसे? इतना बताने के लिए पूर्व पर्याय को कारण कहा, उत्तर पर्याय को कार्य कहा। तीसरा कारण, तत्समय की योग्यता क्यों बताई? तो कि द्रव्य तो अनंत प्रकार के परिणाम कर सकता है। वर्तमान पर्याय में सम्यक दर्शन ही क्यों हुआ? दूसरा कुछ क्यों नहीं हुआ? तो कि तत्समय की योग्यता। पर्याय का कारण पर्याय है, पर्याय भी स्वतंत्र है। किस समय किस पर्याय प्रकट हुए उसकी स्वतंत्रता है। कभी कभी होता है कि नहीं होता है? लोट आटा बनाने थी रोटी, लेकिन बातों बातों में या दूसरे विचार में परोठा का लोट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? मेरा ख्याल नहीं था इसलिए कि उस समय वही होने वाला था, वही पर्याय उत्पन्न होने वाली थी। बनाना था बेंगल्स, लेकिन सोना ने भूल से कड़ा बना दिया और कड़ा मुझे पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। तो देखो, बट सर इन तीन बातों में मुझे एक बात समझ में आई कि सर पर्याय द्रव्य स्वभाव में से आती है, ये इजी पड़ रहा है समझना। बट ये तत्समय की योग्यता और पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का कारण, ये थोड़ा टफ पड़ रहा है। पहले ये बताओ कि एक वर्तमान पर्याय में द्रव्य व्यापेगा ना? हाँ हाँ सर। अब व्याप गया। अब चलो दूसरी पर्याय लाओ, कहाँ से लाओगे? मेरे पास 5 ग्राम ही सोना है, रिंग बन गई। अब दूसरा सोना ही नहीं है, मुझे ये रिंग चाहिए, कहाँ से आएगा?
तो कि रिंग को तोड़ना पड़ेगा, बिखरना पड़ेगा। ये सोना रिंग रूप है, उसका व्यय हो तो ये रिंग बनेगा, नया उत्पाद होगा। तो आपको पूर्व पर्याय का त्याग नेसेसरी है, उसका व्यय होना। तो जो व्यय को भी उत्पाद का कारण बताया, आप व्यय को उत्पाद का कारण कहो कि पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का कारण कहो, दोनों बात तो एक ही है। दूसरी बात कि तत्समय की योग्यता, उसमें पर्याय का कारण पर्याय क्यों कहा? तो कि द्रव्य तो अनंत प्रकार की पर्याय कर सकता है, इतना पोटेंशियल तो है। लेकिन वर्तमान में मुझे क्रोध क्यों आया? कभी कभी लोग बोलते हैं ना, मैं उस समय क्रोधित क्यों हो गया, अभी भी मुझे मालूम नहीं है। कोई जरूरत नहीं थी कि मेरी गलती थी। अरे तेरी गलती क्या थी? उस समय वही पर्याय उसी प्रकार परिणमन होने वाला था, वो पर्याय भी स्वतंत्र है। ऐसा क्यों हो गया? मेरे हाथ में से डिश गिर गई, मेरा ख्याल ही नहीं रहा, अरे डिश का परिणमन वही होने वाला था। तो जो द्रव्य की जिस समय जो पर्याय होने वाली है वही होने वाली है। अगर ऐसा नहीं मानो तो केवल ज्ञान, उसको सही कैसे कहोगे? केवल ज्ञान में तो विश्व के सभी द्रव्य और सभी द्रव्य की अनादि से अनंत काल की पर्याय एक साथ जानने में आती है। तो जो पर्याय हो गई वही जानने में आई है, जो वर्तमान में पर्याय हो रही है वही जानने में आती है, और भविष्य में निश्चित रूप से जो पर्याय होने वाली है वही जानने में आती है। तो जो पर्याय होने वाली है वो सभी द्रव्यों में ज्ञेयत्व स्वभाव है कि नहीं? प्रमेयत्व गुण है कि नहीं? ज्ञेयत्व का अर्थ प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण का कार्य क्या है? तो कि जैसा ज्ञान जानता है वैसा प्रमेयत्व गुण जनाता है। जनाता है उसका अर्थ क्या? ज्ञान स्वभाव से जानता है, और प्रमेयत्व गुण के कारण द्रव्य में द्रव्य स्वभाव कैसा है, उसके अनंत गुण कैसे हैं, और उसकी अनादि से अनंत काल की जो पर्याय हो गई, हो रही है और भविष्य में होने वाली है, ये सभी स्वरूप द्रव्य का प्रमेयत्व गुण के कारण वो ज्ञान को जनाता है। तो ज्ञेयत्व भी निश्चित है कि भूतकाल में कौन सी पर्याय हुई, वर्तमान में कौन सी हो रही है और भविष्य में कौन सी होने वाली है, वही पर्याय उसने जनाई है।
तो अब देखो कौन सी पर्याय होगी अनंत में से। द्रव्य अनंत पर्याय कर सकता है। हमें क्यों अनादि से आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ? जीव सम्यक दर्शन तो कर सकता है, सम्यक ज्ञान तो कर सकता है, सम्यक चारित्र तो कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं हुआ? तो कौन से द्रव्य की कौन सी पर्याय किस समय होने वाली है, वो पर्याय की भी स्वतंत्रता गाई है। द्रव्य को भी सत कहा, गुण को भी सत कहा, पर्याय को भी सत कहा। द्रव्य को भी स्वतंत्र कहा, गुण को भी स्वतंत्र कहा, वर्तमान एक समय की पर्याय को भी स्वतंत्र कहा। उसकी स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो कि जिस समय जो पर्याय होने वाली है वही होगी, वो उसकी स्वतंत्रता है। ख्याल में आता है? तो जिस समय जो पर्याय होने वाली थी वही हुई, तो फिर मैंने क्या किया? मेरे ज्ञान उपयोग ने उत्पन्न होने के साथ ही फिर किया क्या? पर को विषय बनाया, स्व को विषय बनाया, तो उसको तो किसी को भी विषय बनाने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न क्या आया कि अगर पर्याय स्वतंत्र है तो मेरा पुरुषार्थ कहाँ आया? तो कि मेरा पुरुषार्थ सिर्फ वहां है कि मैं किसकी महिमा करूं। कर्म के उदय की महिमा करो या आत्म स्वभाव की महिमा करो। मेरा उपयोग पर की ओर चला जाए कि स्व की ओर चला जाए, जीव का पुरुषार्थ तो यही है कि जिसकी महिमा करोगे वहां उपयोग चला जाएगा। जिसकी आपको रुचि हो उसका विचार चलता है। जिसकी तीव्र रुचि हो वहां उपयोग बार बार चला जाता है। तो मैं रुचि किसकी करूं, इतना पुरुषार्थ है। रुचि अनुसार वीर्य, तो रुचि अनुसार पुरुषार्थ। आपकी इच्छा अनुसार सुबह से शाम तक भाव उत्पन्न होता है? नहीं होता। क्यों? कारण क्या? तो कारण तो तत्समय की योग्यता फिर। हाँ, तो स्वतंत्रता हुई कि नहीं हुई? हाँ, तो फिर इसमें मेरा पुरुषार्थ कहाँ आया? पुरुषार्थ का अर्थ क्या करना है? देखो, आपको द्रव्य बनाना नहीं है, वो तो विश्व में 6 हैं, वहां तो कोई पुरुषार्थ नहीं लगेगा। द्रव्य अनंत गुणात्मक है, तो कोई नए गुण तो बनाना नहीं है, द्रव्यों में डालना नहीं है, वहां भी कुछ पुरुषार्थ नहीं है। परिणमन करने के लिए परिणमन शक्ति चाहिए, वो भी द्रव्य में त्रिकाल है, वहां भी पुरुषार्थ नहीं है।
परिणमन शक्ति है तो हर द्रव्य सहज परिणमन करे, वो तो उसका स्वभाव है। तो मुझे परिणमन करना है, वहां भी पुरुषार्थ नहीं है। अच्छा, 6 में से 5 द्रव्य तो अचेतन है, जड़ है, जिसको सुख दुख का वेदन नहीं है, इसलिए उसको सुखी होने का भी पुरुषार्थ करना नहीं है। अब बात रही जीव की। जीव के परिणाम में सुख दुख है, मोह राग द्वेष है, कसाई नो कसाई है, जिसका फल दुख है वो छोड़ दे तो उसके स्थान पर वितरागता प्रकट होवे, वो सुख है। अतीन्द्रिय ज्ञान उसका वेदन, अतीन्द्रिय सुख उसका वेदन, वो सब सुखरूप है, शांतिमय है। तो अब तेरा पुरुषार्थ क्या है कि मेरी दशा में दुख है या तो राग आदि है, उसको टालकर मैं सुखी बनूं, वितराग बनूं। यही पुरुषार्थ है ना, और कहीं नहीं है। अब सुखी होने की विधि और रीत क्या है? कि मैं पर सन्मुख हो जाऊं तो दुखी होता हूं अनादिकाल से। तो पर का लक्ष्य करने से मैं दुखी होता हूं, उसका अर्थ यह हुआ कि स्व का लक्ष्य करूं तो सुखी हो जाऊं। तो लक्ष्य पर का करूं कि स्व का करूं, वही पुरुषार्थ है। अब प्रश्न ये है कि अनादिकाल से पर का लक्ष्य क्यों है? तो क्या आत्मा का स्वरूप कभी जाना नहीं, आत्मा के स्वरूप की महिमा आई नहीं। आप समझ लो कि आज आपको 50 लाख का मुनाफा हो गया, कोई पुण्य था कि पैसा आ गया, तो पूरे दिन आत्मा का चिंतन चलेगा कि पैसे का चिंतन चलेगा? और पैसे का चिंतन चले तो क्यों चला? पैसा की महिमा है इसलिए कि महिमा नहीं है इसलिए? वास्तव में महिमावंत है कि महिमावंत नहीं है? लेकिन तुझे महिमावंत लगा, वही तेरा विपरीत पुरुषार्थ था। उसके प्रति मोह था, वही विपरीत पुरुषार्थ था। मोह किया किसने? मैंने, कि पैसा ने करवाया। तो कि नहीं, मैंने किया मोह। तो मोह छोड़ना वो पुरुषार्थ है। मोह किया तूने तो छोड़ेगा कौन? मैं। मोह छोड़ना इतना पुरुषार्थ हुआ, पुरुषार्थ और कुछ है ही नहीं। पर का लक्ष्य छोड़ के स्व का लक्ष्य करो, वही पुरुषार्थ। समय हो गया है। थैंक यू राजू भाई। हाँ जी।
थैंक यू रश्मि बहन, थैंक यू राजू भाई। आज स्वाध्याय में बहुत आनंद आया उनके क्वेश्चन से। हाँ जी, वो क्वेश्चन करते रहना, कोई प्रश्न नहीं है। अब वर्तमान चौवीसीना आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी મહાવીર ભગવાનનો જય હો। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટિના ધારક દિવ્ય ધોનીના દાતાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે